Hello students, as we have completed our chapter number 1 index number, and now we are going to start chapter number 2 linear correlation. Linear correlation में रिलेशनशिप, दो वेरिएबल का रिलेशनशिप जो होता है वो पूरा इसी पे चैप्टर है. यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा इजी भी है. इंट्रोडक्शन हम देखें तो we have studied the characteristics of only one variable in the chapters of measures of central tendency, dispersion, skewness, etc. in standard 11. So far our study was restricted to the distribution of one variable. हमने सिर्फ वन वेरिएबल का ही सब कुछ फाइंड किया था. मोड था, मीडियन था, मीन था, वो सारी चीज़ें हमने एक एक वेरिएबल की ही फाइंड की थी. लेकिन but many situations arise in which the desirable and necessary to study two or more variables at a time. Example देखें तो if we study the yearly sale of a product of a company, we would also like to know its profit as from that yearly. हम किसी कंपनी का सेल फाइंड कर रहे हैं तो हमको उस कंपनी का प्रॉफिट भी फाइंड करना है. तो हम दो चीज़ें फाइंड कर रहे हैं, सेल और प्रॉफिट, दोनों चीज़. तो हमको उसको कंपेयर भी करना है कि सेल और प्रॉफिट के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या रिलेशन है. दैट वी कैन फाइंड नेचर एंड डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन दिस टू वेरिएबल्स, सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट. द yearly rainfall and yield to rise in some region, price and demand of an item, income and expenditure of family, height of father and height of son, age of husband, age of wife, etc. are some well-known examples where we see the relation between paired variables. इस चैप्टर में क्या है, पेड वेरिएबल, पेयर बनाए हुए वेरिएबल्स आपको दिए गए होंगे और इसमें आपको रिलेशन फाइंड करना होगा. Similarly, we come across many situations in which two variables are related. We shall study about the relationship between two mutually related variables in this and next chapter. ये दोनों चैप्टर में हम यही चीज़ें करने वाले हैं. इसके नोट्स देखें तो फर्स्ट वन है, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी univariate distribution if it is obtained by collecting the information of one variable. Example देखें तो the distribution of marks obtained by students in subjects, monthly income of persons working in company, age of drivers, state transport. The information is obtained for two different characteristics of a unit at the same time is called bivariate data, and the distribution obtained from it is known as bivariate distribution. Example देखें, the distribution of price and supply of an item, monthly expenditure of saving of families of a group, age of husband and age of wife. ये सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें यूनिवेटेड में एक ही था, इसमें दो वेरिएबल्स हैं. The simultaneous changes in the values more than two variables can be studied by multiple and partial correlation, but here we shall study correlation between two variables. अब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लीनियर कोरिलेशन, उसका मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है. let us first understand the meaning of correlation. We know that in many situations simultaneous changes are seen in the values of two variables. The simultaneous changes in the values of two variables are mainly due to following reasons. जो चेंजेस होते हैं कोई भी वेरिएबल्स में, उसके दो रीजन्स होते हैं. तो फर्स्ट रीज़न क्या है, देयर इज़ अ कोज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन टू इफेक्ट. इसका कुछ रीज़न होगा, फर्स्ट कोज इफेक्ट, एंड सेकेंड द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स चेंज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सम अदर फैक्टर, या फिर कोई अदर फैक्टर होगा तो वो भी एक रीज़न होगा. इन केस ऑफ ईयरली रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ राइज इन अ रीजन, usually if rainfall increase, yield of rice also increase. रेनफॉल इंक्रीज होगा तो राइस की जो खेत में जो पैदाश है वो भी इंक्रीज हो जाएगी.
So rainfall is cause and yield of rise is an effect. Similarly, when the income of a person remains more or less same, if his expenditure increase, saving decrease. कोई भी पर्सन की एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी सेविंग्स है वो डिक्रीज हो जाएगी. एंड इफ हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस, सेविंग इंक्रीजेस. वो एक्सपेंस कम करेगा तो उसकी सेविंग्स बढ़ेगी. एक्सपेंडिचर इज अ कॉज एंड हियर सेविंग्स इज द इफेक्ट. एक्सपेंडिचर कॉज है, क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ी है तो सेविंग्स कम हुई है, और एक्सपेंडिचर्स कम हुई है तो सेविंग्स बढ़ी है. तो यही रिलेशन है. द चेंजेस इन टू वेरिएबल्स इन अबव टू एग्जाम्पल्स indicates cause effect relationship. Sometimes both variables may be manually dependent and therefore neither can be specifically said as the cause and the other as effect. Generally it happens in case of economic variables. Example देखें तो demand and supply. If demand increases, it is necessary to increase supply. जो demand increase होती है तो supply डिक्रीज होगी. एंड व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस, प्राइस टेंड टू डिक्रीज एंड बिकॉज ऑफ डिमांड ग्रोज अप. और जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगी. क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है. डिमांड किसी की चीज़ की बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा से ज़्यादा होती है. और जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो प्राइस टू टेंड डिक्रीज, और सप्लाई जब बढ़ती है तो उसकी प्राइस कभी कभी डिक्रीज भी होती है. बिकॉज ऑफ दैट डिमांड गोज अप. दस डिमांड एंड सप्लाई आर इंटरडिपेंडेंट. द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सच सिचुएशन. In case of sale of raincoats and sale of shoes, the value of both variables increase in monsoon. मानसून की सीज़न में रेनकोट्स एंड शूज़ दोनों की डिमांड है वो बढ़ जाती है. देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशन हियर बिटवीन टू वेरिएबल्स, बट द चेंजेस इन द सेल ऑफ रेनकोट एंड सेल ऑफ शूज़ आर ऑब्जर्व ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थर्ड वेरिएबल. थर्ड वेरिएबल है बारिश, रेनफॉल, namely the monsoon. This is an example of indirect cause effect relationship. ये कौन सा रिलेशन था? indirect cause effect relationship. After discussing the examples of relationship between two variables, we can define correlation as follows. If there is simultaneous change in the values of two variables due to direct or indirect cause effect, when it is said that the correlation between two variables. अब उसके डेफिनेशन देखिए, इसको अंडरलाइन करना है आपको भी बुक में. The correlation is said to be linear correlation if the points plotted on the graph paper corresponding to the ordered pairs of the values of two corrected variables are on one line or on a line or nearer to the line. In other words, जो अदर वर्ड्स वाला है वो याद रखना है, ऊपर वाला थोड़ा हार्ड है तो अदर वर्ड्स वाली जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है. व्हेन द चेंजेस in values of two related variables have nearly constant proportion, then we can say that there is a linear correlation. जो सेकेंड डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है. when the change in values of two correlated variables have nearly constant proportion, then we can say that there is a linear correlation. Generally the exact linear correlation exists in the natural sciences like mathematics and physics. Because of change in one variable, the value of other variable changes in constant proportion. Example देखें तो radius and circumference. इसमें क्या होता है? We know that if a radius of a circle are units, then its circumference is 2 pi r. So when the radius is multiplied by 2 pi constant, 2 pi है वो constant है, we get this circumference.
Thus, it can be said that because of change in radius, there is a circumference of circle change in constant proportion. This is a clear from the following table. कि हम टेबल में देख सकते हैं चेंज हुआ तो इसमें भी चेंज हुआ, रेडियस में चेंज हुआ तो सर्कमफरेंस में भी चेंज हुआ है, ये डबल हो गए हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4, 3 है तो यहाँ पे 6, तो दोनों चीज़ों में चेंज आया है। एक चीज़ चेंज होने पे दूसरे पे भी इफेक्ट आया है। Is the constant speed time taken by an object to travel the distance and the distance traveled by an object. If an object is traveling at the speed of 50 km per hour, then the distance traveled is a constant proportion to the time taken to travel it. We can understand it very easily from the following table. Time taken by object to travel 2, 3, 6, 10 and distance traveled by an object is 100, 150, 300 and 500. But generally in commerce, economics and social science, the changes in the values of two variables is not constant proportion. Example देखें तो if rainfall of in a current year is increased by 10% for 2 consecutive years as compared to previous year, then it is not necessary that yield also increases in the same proportion for both the years. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस साल 10% ज़्यादा रेनफॉल हुआ है तो पिछले साल में कम हुआ होगा या उससे ज़्यादा हुआ होगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, वो कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है. दिस इज़ बिकॉज बोथ वेरिएबल्स रेनफॉल एंड यील्ड चेंज अंडर द इफेक्ट of some other factors and hence there is an element of chance uncertainty in the changes. So in such cases the points of ordered pairs of two correlated variables may not be on the line but they may be almost nearer to the line. We shall study linear correlation in this chapter. Now we shall refer linear correlation as only correlation. अब कोरिलेशन के दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव में क्या होता है कि व्हेन चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ कोरिलेटेड वेरिएबल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं. कैसे? तो कोई चीज़ की डिमांड इंक्रीज हुई तो सप्लाई भी इंक्रीज हुई, कोई चीज़ की डिमांड इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ. द कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ एन आइटम, एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन रोड, सेल एंड प्रॉफिट ऑफ एन आइटम, रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप एंड अ रीजन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. ये सारी चीज़ें हैं जिसमें दोनों चीज़ें इंक्रीज होती है या दोनों चीज़ें डिक्रीज होती है, तो ये पॉजिटिव हुआ. नेगेटिव में क्या होगा? इससे ऑपोजिट. व्हेन द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स आर ऑपोजिट डायरेक्शन, द कोरिलेशन बिटवीन द सेम इज सेड टू बी नेगेटिव. तो इसमें क्या होता है कि एक चीज़ इंक्रीज होगी और एक चीज़ डिक्रीज होती है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हुआ. द कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ एन आइटम, कभी प्राइस बढ़ती है, कोई चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कभी कभी कम भी हो जाती है. कोई चीज़ पहले 500 में मिलती थी और आज उसकी प्राइस 2000 हो गई है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी ना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पैसा कोई खर्च नहीं करेगा, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हुआ. मिनिमम डे टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स इन विंटर, अल्टीट्यूड एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. तो आज हमने कोरिलेशन किया, लीनियर कोरिलेशन का डेफिनेशन किया और उसके दो टाइप्स देखे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो आपको सेकेंड चैप्टर में आपकी नोटबुक में लीनियर कोरिलेशन का मीनिंग लिखना है और उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो कोरिलेशन है उसका भी मीनिंग लिखना है और उसके एग्जाम्पल्स आपको खुद सोचने हैं. ये जो बुक में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो एग्जाम्पल्स आप ना लिखें, मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने आप सोचो और नए एग्जाम्पल्स बनाओ और आप अपनी बुक में लिखो. थैंक यू. तो होम असाइनमेंट में आपको इतना ही करना है.